Hello guys. So in the last lecture, what I have discussed, like I told you, we are going to continue with current affairs series first, then we will proceed with the polity and constitution series, right? So that was I was saying, but uh, uh, recently I am facing some health issues. That's why I couldn't, have like a proper look what is important from the our exam perspective, what has to be deleted, unnecessary details, right? So that is the problem. I have to start once again this polity and constitution along with that current affairs series, right? So as soon as I get well, I will pursue only current affairs series first. Then we will proceed with polity and constitution series, right? So in today's lecture, it's relatively special lecture because the exam which we are preparing for, we are going to study about that. Okay, we are going to discuss what is what is the composition of the PC, how the remote process takes place of the members and chairman. You know all the functions, everything we are going to know about the UPC. Along with that, at the state level, state job SPSC. Okay, we are going to study as well SPSC and JSPSC, Joint State Public Service Commission, State Public Service Commission. So in this one single lecture, we are going to study the all these dimensions with respect to civil services in India. Okay, this lecture is very crisp, and once you go through this lecture, I don't think you need to refer even Lakshmikant book. Even I have inserted some of my notes in this lecture that even Lakshmikant doesn't contain. Okay, so you are going to have a big benefit out of it after watching this lecture. So guys, without wasting any time, let's start. So what we need to understand ki UPSC is a basically central recruiting agency. It means like at the union level, the recruitment process is done by the UPSC, Union Public Service Commission, and UPSC is a constitutional body, like from Article 1315 to 3923. In Part 14 of the Constitution, there has been elaborate provisions has been contained with respect to the UPSC. So first provision which has been mentioned, that is the composition. Ki what should be the composition? So UPC is something the body where in which the chairman and its members are being appointed by the President of India, and Constitution even doesn't specify the strength ki how many members should be there. Uh, with one exception ki UPC, the Constitution says ki chairman will be there and members, the number of members may be decided by the president. Further, no qualifications has been mentioned in the constitution ki which person has can be appointed as the member and the chairman of the UPSC. So for that purpose, with one exception basically कि जितने भी मेंबर्स होंगे, सपोज वो 10 मेंबर्स हैं प्लस वन चेयरमैन है, तो उनमें से फाइव फाइव क्या होंगे, आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंडर एटलीस्ट 10 ईयर की सर्विस कर चुके हो, मतलब गवर्नमेंट सर्विस में रह चुके हो अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, राइट. और फर्दर क्वेश्चन ऑल्सो सेज कि जो कंडीशन ऑफ द सर्विस होंगी वो भी प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे. दैट इज समथिंग कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू से अबाउट द यूपीएससी. ओके. Further, it also mentioned about the term of the UPSC member and chairman, that is basically 6 year or 65 year, whichever is earlier. इतना तो आपको पता ही होता है, right? अब this is the screenshot which I have taken from the official website of the UPSC basically. Okay. Recently, as you know, Mr. Pradeep Saini has resigned as the chairman of the UPSC, and Mrs. Prati Sudan has been appointed as the chairman of the UPSC, right? So this is the basic. She is a chairperson. After that, these are the members, other members. Okay, like you can just pause the video and like have a look over it. Okay. Now this the सेकेंड थिंग इज दिस कि भाई आप अपॉइंट कर दिया अपने प्रेसिडेंट ने, अब रिमूव का प्रोसीजर क्या है, कौन रिमूव करेगा? तो इसके लिए देखो, प्रेसिडेंट चेयरमैन और मेंबर्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं. इसके लिए दो तरीके होते हैं. एक तो होती है कुछ सर्कमटेंसेस होती है, ठीक है, जैसे कोई मेंबर या चेयरमैन क्या इंसॉल्वेंट हो जाए, या कुछ मेंबर या चेयरमैन क्या हो जाए, किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में इंडल्ज हो जाए अपने ऑफिस के टाइम पे, ऑफिस मतलब ड्यूटीज के साथ साथ.
और ये हो सकता है कि अब जब प्रेसिडेंट को लगे कि उस मेंबर या चेयरमैन की बॉडी और माइंड इनफर्मेट है, मतलब सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो उस सारी कंडीशन में प्रेसिडेंट डायरेक्टली उनको रिमूव कर सकते हैं, मेंबर या चेयरमैन को। देयर इज ए वन मोर कंडीशन दैट इज अबाउट द मिसबिहेवियर बाय एनी चेयरमैन और द मेंबर, कि जब कोई मिसबिहेवियर का केस आता है तो प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ता है, मैटर को सुप्रीम कोर्ट को रेफर करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, इंक्वायरी करती है। इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस देती है, और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि या देयर वाज सब सीरियस कंसर्न विद रेस्पेक्ट टू द इट वाज अ जेन्युइन कि मिसबिहेवियर हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगी कि आप उस मेंबर या चेयरमैन को क्या करिए, रिमूव करिए। तो ये जो एडवाइस होगी वो प्रेसिडेंट पे क्या होगी, बाइंडिंग होगी, मतलब प्रेसिडेंट उसको मना नहीं कर सकते, उनको रिमूव करना ही पड़ेगा। फर्दर वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस कि आपने देखा होगा कि प्रीवियस पीवाईक्यू में प्रीलिम्स के पीवाईक्यू में आपने देखा होगा कि जब भी ऐसा एक स्टेटमेंट आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन दिस, ओके, इन जनरल वो क्या होता है, गलत होता है। बट अब मिसबिहेवियर के केस में क्या है, ये सिस्टम थोड़ा उल्टा है। यहाँ पे एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया कि मिसबिहेवियर क्या होता है। तो ठीक है, आपको इतना से याद रखना, अगर स्टेटमेंट में आ जाए कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द मिसबिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू द चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, राइट। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो होता क्या है कि ऑब्वियसली आपको पता होगा यूपीएससी इज ए वेरी रेस्पेक्टेड बॉडी, राइट। तो उसके इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए कुछ प्रोविजंस किए गए हैं, जैसे चेयरमैन और मेंबर्स क्या हो सकते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनकी पोजीशन क्या होती है। मतलब यूपीएससी के अगर चेयरमैन, जैसे अभी मिसिस प्रति सूदन है, वो क्या है यूपीएससी चेयरमैन, तो उनके बाद वो कहीं भी आप जॉब नहीं कर सकती है, सिंपल एज दैट, ठीक है, मतलब सिंपल। और यूपीएससी का कोई मेंबर है, वो यूपीएससी के चेयरमैन बन सकता है, या किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है, या किसी जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है। उसके पास इतनी सी 3 पॉसिबिलिटीज हैं। सिमिलरली कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है, वो यूपीएससी के चेयरमैन बन सकता है, यूपीएससी का मेंबर बन सकता है, किसी अदर स्टेट का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है, और जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है। अगेन तो देखो ये आप मतलब आप यार इसको देख सकते हो, बट कहने का मतलब देखो इसमें जो कंक्लूजन वो होगा कि आप एक चीज नोटिस करोगे कि इसमें कोई भी मेंबर होगा ना, किसी भी लाइक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो वो है ना, वो उसका डिमोशन नहीं, उसका हमेशा प्रमोशन होता है। मतलब जैसे कोई यूपीएससी चेयरमैन, तो यूपीएससी मेंबर नहीं बन सकता, मतलब उसका डिमोनेशन नहीं हो सकता, मतलब उसका प्रमोशन ही होता है हमेशा, ये याद रखना है बस। आप इसको पोज करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ बेसिकली अब कहाँ चले थे अपन, ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ अब अपन है ना सीधा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो उस पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको भी अपन साथ में लेके चलेंगे बहुत जल्दी। इसमें भी देखो सेम प्रोविजन है, इस स्टेट के लिए क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बॉडी बनाई है, और सेम आर्टिकल्स है 315 से लेकर 323 तक, आर्ट 14 पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के। क्योंकि देखो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सिंस आई थिंक 2024 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ नहीं है आर्टिकल और पार्ट से रिलेटेड, सो ये आपको थोड़ा आइडिया। इसमें देखो कुछ नहीं है कंपोजिशन में, देखो गवर्नर वहां पे प्रेसिडेंट अपॉइंट वगैरह कर रहा था, बस उनकी जगह गवर्नर हो जाएंगे, ये इसमें कुछ है नहीं। देखो वही सेम इसमें भी स्ट्रेंथ फिक्स नहीं की है, अपॉइंट कौन गवर्नर करेंगे, और डिस्क्रिप्शन अगेन ना क्वालिफिकेशन मेंशन किए कुछ कि कौन अपॉइंट होगा, बस एक चीज बताया कि एटलीस्ट आधे मेंबर्स जो हाफ ऑफ मेंबर्स क्या होने चाहिए, एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट अंडर के गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंडर 10 ईयर की सर्विस कर चुके हो, इतना से याद रख सकते हैं। इसके साथ ही कंडीशन ऑफ द सर्विस अगेन गवर्नर डिसाइड करते हैं। इनका टर्म थोड़ा यूपीएससी से अलग है, इनका टाइम होता है 6 ईयर और 62 ईयर्स, बस इतना से याद रखना है, ये थोड़ा अलग है, बस इतना से आप याद रख सकते हो। 1 सेकेंड, क्या याद रखना है कि मतलब ये, ठीक है, इतना से याद रखना है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं कि 6 और 62 जो भी पहले हो जाएगा वो हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद उनको अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है, मतलब देखो बोल सकते हैं कि जो एग्जाम से मतलब एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस वो यहाँ से आते हैं कि दो द मेंबर एंड द चेयरमैन ऑफ द एसपीएससी आर बीइंग अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, बट दे ओनली कैन बी रिमूव्ड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न, मतलब सॉरी द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, ओके। मतलब देखो गवर्नर उनको अपॉइंट करेंगे चेयरमैन ऑफ द मेंबर ऑफ द एसपीएससी, बट
उनको जो रिमूव करने का राइट है वो किसके पास है? ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। वो सेम कंडीशन है, वही तीन की थ्री कंडीशंस होंगी प्लस एक मिसबिहेवियर का केस होगा। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सेम मैटर, अगर मिसबिहेवियर का केस है तो सुप्रीम कोर्ट को मैटर रेफर करना पड़ेगा और वो क्या करेंगे? एडवाइस देने पे उनको रिमूव करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। फर्दर अगेन यहाँ पे भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिफाइन किया टर्म को, मिसबिहेवियर को, बस इतना से याद रखना है, ठीक है। अब हाँ, हमारे काम का चीज है नेक्स्ट, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में एक छोटा सा बोला है कि आप क्या बना सकते हो? जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकते हो जब 2 और मोर स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर आपसे रिक्वेस्ट करे पार्लियामेंट से। मतलब 2 और मोर स्टेट की लेजिस्लेचर क्या करे पार्लियामेंट से आपके रिक्वेस्ट करे कि वी वांट ए कॉमन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे अपन बोलते हैं जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पार्लियामेंट बना सकती है। सो बेसिकली आपको याद ये रखना है कि जेएसपीसी क्या होती है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी, ना कि वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बस इतना से याद देखो, एसपीएससी एंड यूपीएससी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जबकि जेएसपीएससी क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये आपको याद रखना है, बस इतना सा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होगा यहाँ से जेएसपीएससी के पर्सपेक्टिव से। प्लस आप याद रख सकते हो कि चेयरमैन मेंबर ऑब्वियसली आपको कॉमन सेंस की प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, क्योंकि फिर अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट या कंफ्यूजन हो जाएगी कौन करेगा। और टर्म अगेन 6, जैसे एसपीएससी का होता है वैसे ही इसका होता है, सिंपल 6 और 62 ईयर्स। रिमूव भी प्रेसिडेंट ही करेंगे, जैसे एसपीसी ईपीसी तीनों में से सेम केस है तीनों में। कंडीशन ऑफ द सर्विस प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, और एनुअल जो रिपोर्ट है वो हमेशा याद रखना गवर्नर को आप प्रेजेंट करेंगे, ना कि प्रेसिडेंट को, याद रखना। और जो गवर्नर को रिपोर्ट देंगे जेएसपीसी वाले, वो अलग अलग देंगे, दो जो भी जितने भी स्टेट्स उसमें होंगे, और गवर्नर्स उस रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर के सामने प्रेजेंट करेंगे। याद रख सकते हैं इतना सा, बस। अब आगे बढ़ते हैं। वन सेकेंड। अब हमारे काम का चीज क्या है यहाँ से? हाँ, अब देखो हमने ये पढ़ लिया कि यूपीएससी कंपोजिशन क्या होता है, उनका रिमूवल प्रोसीजर क्या होता है, सेम विद एसपीएससी एंड जेएसपीसी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। मतलब ये देखो, ये आपके लक्ष्मीकांत में मेंशन नहीं है चीजें, ये मैंने अपने नोट से स्टिक किया इसको, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि यूपीएससी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, एसपीएससी का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सीएसपीसी का, मतलब सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रोविजन हुआ था। उस टाइम से ही यूपीएससी बनी है। जब एक्चुअल में इसका ओरिजिन हुआ था 1926 में, 1 अक्टूबर। अरविंद सक्सेना इसके फर्स्ट चेयरमैन थे यूपीएससी के, मतलब उस टाइम उसको बोलते थे सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फेडरल सर्विस कमीशन बनाया, इसके साथ ही इस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बना दिया और जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बना दिया। तो मतलब अगर आपको पूछे कि यूपीएससी के ओरिजिन कहाँ से, तो कौन से एक्ट के थ्रू बना यूपीएससी, तो एक्चुअल में यूपीएससी बना है ओरिजिनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से, जबकि एसपीएससी एंड जो जेएसपीएससी वो बने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। बस इतना से याद रखना है, एग्जाम परस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अब हमें याद क्या रखना है यहाँ से? अब यूपीएससी हमने देख लिया कि कंपोजिशन क्या है भाई, सिंपल सी बात है उनका रिमूवल प्रोसीजर। अब हमें पता होना चाहिए ना कि यूपीएससी के फंक्शंस क्या क्या हैं। सो बेसिकली यूपीएससी के जो फंक्शंस होंगे, जो यूनियन लेवल पे होंगे, वो सेम ही फंक्शंस आपके स्टेट पब्लिक एसपीएससी के स्टेट लेवल पे हो जाएंगे, बस। तो आपको डबल एफर्ट्स नहीं डालने, एक बार आप यूपीएससी के फंक्शंस को अच्छे से डिस्कस मतलब पढ़ लेंगे, स्टडी कर लेंगे, उसके बाद जो सेम जो फंक्शंस है वो स्टेट लेवल पे एसपीएससी के हो जाएंगे। तो डबल एफर्ट्स नहीं करने आपको, सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ पे आपको बस यूपीएससी के फंक्शंस बता रहा हूँ, ठीक है। हम उसे डिस्कस करेंगे। आप बस सिमिलरली आप बस अज्यूम कर लेना कि स्टेट लेवल पे ये किसके होते हैं, एसपीएससी के होते हैं, और अगर दो और मोर स्टेट्स के लिए जेएसपीसी है तो क्या हो जाएगा, वो सेम उस पर भी अप्लाई हो जाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन है ये ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज और पब्लिक सर्विसेज यूटीज के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, एज वी ऑल नो, इतना तो हमें पता ही है, राइट। नेक्स्ट है कि ये स्टेट्स को भी असिस्ट करता है। कब करता है? जब 2 और मोर स्टेट्स को लगे कि हमें जॉइंट रिक्रूटमेंट करना है। जैसे अभी यूपी और बिहार को लग जाए
कि भाई हमें क्या करना है, जॉइंट रिक्रूटमेंट करना है, उसके लिए कैंडिडेट्स को कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशंस चाहिए, जैसे डाटा एनालिस्ट कुछ जैसी जॉब, मतलब ऐसी कुछ आप बोल सकते पोस्ट है, उसके लिए उन्हें कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो उस केस में जो 2 और मोर स्टेट क्या करेंगे, यूपीएससी रिक्वेस्ट करेंगे, उसके बाद यूपीएससी उनको असिस्ट करेगी। इसके साथ ही यूपीएससी क्या कर सकती है, किसी भी स्टेट की नीड को पूरा कर सकती है जब रिक्वेस्ट करे उस स्टेट के गवर्नर और प्रेसिडेंट से अप्रूवल मिल जाए, इतना से याद रखना है। इसके साथ ही यूपीएससी क्या कर सकती है, यूपीएससी से प्रेसिडेंट एडवाइस लेते हैं, मतलब प्रेसिडेंट को यूपीएससी एडवाइस देती है कौन कौन से मैटर पे, जैसे कैसे रिक्रूटमेंट करवाया जाए, जो भी सिविल सर्विसेज और सिविल पोस्ट होती है सारी, उससे रिलेटेड मैटर्स, प्रमोशन और ट्रांसफर किसी सर्विस का, जैसे आईएएस से आईपीएस से ट्रांसफर करना हो, मतलब आईपीएस से आईएएस में ट्रांसफर करना हो, अगर किसी की रैंक इंप्रूव हो गई है तो उस केस में यूपीएससी, क्योंकि अपॉइंटमेंट कौन करता है बेसिकली, जो सिग्नेचर वो सील होती है वो होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, जो भी अपन ऑल इंडिया सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें क्या होता है, जैसे आप यू गेट इनटू द सर्विस, यू गेट एक्चुअली द अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो उसमें सिग्नेचर किसके होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। तो अगर सपोज करो किसी का आईपीएस में सिलेक्शन हुआ पहले और उसने रैंक इंप्रूव करके आईएएस में उसका मतलब रैंक मतलब बन सकता है, मतलब उसकी रैंक हुआ है, तो उस केस में आप ऐसे नहीं कि अगर आप हैदराबाद में अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो तो इसे भाग के आ जाओगे सीधा छोड़ के, ऐसा नहीं होता, एक प्रोसीजर होता है इसका। तो यूपीएससी उसको प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है कि आप अब है ना इस ऑफिसर को क्या करिए, आईएएस में ट्रांसफर करिए, मतलब सिंपल सा ये एडवाइस देते हैं। फर्दर किसी वन सर्विस से मतलब ये तो हो गया ना, हमने डिस्कस कर लिया, राइट। हाँ, सारे जो डिसिप्लिनरी मैटर्स होते हैं, जैसे पूरा खेड़कर मैटर में आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उसमें भी यूपीएससी ने तो बोला था, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया था कि इनकी जो कैंडिडेचर है कैंसिल किया जाता है और फ्यूचर एग्जाम्स में इनको बंद वो क्या बैन किया जाता है, और एफआईआर भी फाइल की थी, सिंपल। और इसके साथ ही किसी टेम्पररी अपॉइंटमेंट करना, मतलब 1 साल से ज्यादा, सपोज करो किसी टेम्पररी अपॉइंटमेंट इन द केस की, मतलब 1 ईयर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो किसी को भी ऑल इंडिया सर्विस के लिए अपॉइंट कर सकते हैं बेसिकली, या किसी भी सर्विस के लिए, बट उससे ज्यादा अगर किसी को करना है मतलब, तो उसमें एडवाइस चाहिए यूपीएससी की बेसिकली। इसके साथ ही मतलब सर्विस की एक्सटेंशन के लिए, जैसे कोई रिटायरमेंट होने वाला है, 60 ईयर्स होने वाले हैं, ठीक है, तो उसको 1 ईयर एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो यूपीएससी उसको एडवाइस देगी तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अलॉन्ग विद इट, जैसे कुछ आपके सिविल सर्वेंट्स रिटायर हो गए तो उनका फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रीएम्प्लॉयमेंट करने के लिए एडवाइस भी यूपीएससी देती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। फर्दर ऐसा कोई भी मैटर हो सिविल सर्विसेज के मैनेजमेंट से रिलेटेड, उस पर भी यूपीएससी एडवाइस देती है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूपीएससी के फंक्शन जो भी करंटली है उनको आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकता है। बढ़ा कौन सकता है, वो पार्लियामेंट बना सकती है, मतलब पार्लियामेंट कोई एक्ट के थ्रू क्या कर सकती है, यूपीएससी के जो फंक्शंस हैं उनको इनलार्ज कर सकती है। इतना याद रखना है बस, सिंपल सा। प्लस यूपीएससी एनुअली क्या करती है, एवरी ईयर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट मतलब देती है अपनी परफॉर्मेंस की, और प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखते हैं दोनों हाउस के सामने। और एक चीज ये है कि कोई भी इंडिविजुअल मिनिस्ट्री, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री या कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट है, उसके पास ये पावर नहीं है कि वो यूपीएससी की एडवाइस को इंडिविजुअली रिजेक्ट कर सके, मतलब एज ए होल गवर्नमेंट आप क्या कर सकती है, यूपीएससी की एडवाइस को नेग्लेक्ट कर सकती है, इग्नोर कर सकती है, बट एज इंडिविजुअल डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री यूपीएससी की एडवाइस को वो नहीं कर सकती, मना नहीं कर सकती, राइट। फर्दर अब हमने देख लिया कि फंक्शंस क्या, अब कुछ लिमिटेशंस भी यूपीएससी की, जैसे ये कुछ मैटर्स है जिस पे क्या यूपीएससी कंसल्टेट नहीं की जाती, जहाँ पे यूपीएससी का कोई लेन देन नहीं होता, जैसे रिजर्वेशन, जैसे ओबीसी एससी एसटी, जैसे आपने देखा होगा यूपीएससी के जो होते हैं क्या बोलते हैं एग्जाम्स में क्या होता है, रिजर्वेशन होता है, राइट। ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 10%, ये सब कुछ है ना। वैसे ही तो इस केस में यूपीएससी के पास कोई पावर नहीं है कि रिजर्वेशन दे ना दे, ये उसमें केस में यूपीएससी इज नॉट बीइंग कंसल्टेड। फर्दर कि कौन से मतलब कैंडिडेट को कौन सी सर्विस मिलेगी, ये यूपीएससी मतलब फिक्स नहीं करती है, याद रखना, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। फर्दर अब हमने देख लिया कि लिमिटेशंस क्या, अब गवर्नमेंट जो आपकी यूपीएससी, इसके कुछ इसका अल्टीमेट रोल क्या है एक्चुअली में, कॉन्स्टिट्यूशन इसको कैसे देखता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको क्या बोलता है कि ये मेरिट सिस्टम का वॉचडॉग है,
मतलब ये एक तरह से वॉच डॉग ही बोल सकते हैं आप। मेरी सिस्टम का इसको क्या बोलते हैं, वॉच डॉग बोलते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या है, रिक्रूटमेंट करना ऑल इंडिया सर्विसेज का और सेंट्रल सर्विसेज का। और इसका देखो एक चीज हमारी याद पता होना चाहिए, एक बार यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या यूपीएससी का काम है क्या ये कॉलेज ये कौन सी सर्विस मिले कैंडिडेट को, ठीक है, ये सब कुछ। तो ये काम नहीं, बस उनका काम है रिक्रूटमेंट करना। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल डिसाइड कि विच सर्विस हैज टू बी एलोकेटेड दिस पार्टिकुलर कैंडिडेट। फर्दर कौन से कैंडिडेट को कितना पैसा मिलेगा ये सब कुछ कौन डिसाइड नहीं करता, यूपीएससी का कोई काम नहीं इन चीजों में। और कौन ट्रेनिंग मैनेजमेंट, ट्रेनिंग कौन करवाता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वो करवाता है ना, ठीक है। तो इसमें लबासना जो यूपीएससी के अंडर नहीं आता है। इसके साथ ही कैडर, कौन सा कैडर किसको मिलेगा, यूपी किसको मिलेगा, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, ना कि आपकी यूपीएससी। फर्दर यूपीएससी की जो भी एडवाइस होती है वो क्या होती है, रिकमेंडेटरी होती है, ना कि बाइंडिंग। बस इतना से याद रखना है, बस रिजेक्ट कर सकती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब लास्ट में हम एक चीज देख लेते हैं। हाँ, ये मेरे पास एक चार्ट है बेसिकली, ठीक है। तो ये से मैं टेलीग्राम चैनल पे भी मतलब अपलोड कर दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से मैं कुछ इंपॉर्टेंट जैसे ये क्लिप्स जैसे आपको याद करने में दिक्कत हो तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसलिए इसको ये टेबल है, इससे याद करना इजी हो। जैसे यूपीसी अपन देखते हैं आर्टिकल कौन सा इसमें 315 से, एसपीसी का भी सेम आर्टिकल तीनों का। बट एसपीसी क्या एक स्टेटरी बॉडी, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, याद रखना। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट, देखो ये सब कुछ आप ऐसा करना, इसको पॉज करके आराम से इसको मतलब याद करना है। अभी जैसे अभी की बात कर रहे हैं हमने, इलेक्शन कमीशन भी डिस्कस कर लिया है, केक डिस्कस कर लिया है, और अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल डिस्कस कर लिया। तो आप इसको ना अगर याद करने में दिक्कत तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। और मैं वैसे भी मतलब टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ डाल रहा हूँ, मतलब इसको जो भी है तो इसको डाल रहा हूँ, तो आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको याद करने में इजी हो जाएगा काफी ज्यादा, क्योंकि अदरवाइज इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट टू देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो एक जगह होंगे तो इट्स विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर द थिंग्स, राइट। So I hope guys this lecture was really helpful for you guys. Thank you for your time. Take care. Bye bye.